Assalamu alaikum students. Welcome to the 23rd lecture of Artificial Intelligence. I hope you are fine and enjoying this video lecture series of AI. I am Muhammad Umar Farooq, lecturer Computer Sciences, University of Education, Lahore. We are covering the constraint specification problem. So in our previous lecture we talked about this concept that CSP problem take the advantages of a structure of states and use the general purpose heuristic, general purpose values, concepts rather than specific problem specific heuristic to enable the solution of complex problem. मीन कि हम क्या करते हैं, कोई ना कोई जनरल पर्पस जो है वो रूल डिफाइन कर देते हैं, कांस्टेंट हम डिफाइन करते हैं जो कि क्या करती है, जो हमें हेल्प करती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. एंड वही जो जनरल पर्पस हमारी कांस्टेंट होती हैं that eliminate large portion of search space and जो हमारी क्या है कि कम से कम हम search space जो होती है उसको हम explore करते हैं. So the second point is the main idea is to eliminate large portion of the search space all at once by identifying the values, variables, combinations that violate the constraint, जो कि constraint को क्या करते हैं, violate करते हैं. So the constraint specification problem consists of three components: x, d, and y. X are variables, and d domain, and c is the constraint. So we will write the domain in the form. Domain क्या है? Domain हमारे पास all the values which values from v1 to vk जो कि possible values हैं, जो कि variable x है अपने अंदर क्या कर सकता है, store कर सकता है, उसको allow होता है कि वो ले सके इन values को. And we write the constraint in the form of this pair, the scope and relationship. And हम क्या करते हैं, scope के अंदर वो सारे variables होते हैं उसको लिखते हैं, और relationship जो हमारी constants होती हैं उसको हम लिखते हैं. So we solved this problem, the map coloring problem, that we are looking at a map of Australia showing each of its states and territories. We are given the task of coloring each region is a red, green, blue. So there are three colors in such a way that no neighboring regions have the same colors, कि हमारे पास कोई भी दो neighboring जो regions हैं उनका कोई same color ना हो. So there are 6 states so and 3 colors. तो हमने इस प्रॉब्लम्स को क्या किया था कि अगर हम नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करना चाहें तो किस तरह से करते हैं, एंड जब हम इसको CSP के थ्रू सॉल्व करते हैं तो किस तरह से करते हैं. तो हम इस तरह से प्रॉब्लम को सोल्यूशन हमने फाइंड किया था कि अगर हम क्या करते हैं, इसको ब्लू कलर असाइन करते हैं और बाकी 5 हमारे पास स्टेट्स हैं उनको डिफरेंट कलर्स हम क्या करते हैं उसको दे देते हैं. तो द सोल्यूशन इज़ दैट विदाउट टेकिंग द एडवांटेज ऑफ कॉन्स्टेंट्स प्रोपिगेशन, तो हम क्या करते हैं, सर्च प्रोसीजर वुड हैव टू कंसीडर 3 raised to power 5 mean which is equal to 243 assignments of 5 neighboring variables. So there are 3 colors and 5 neighboring states. Because we have fixed one, we will fix one color for our first state. हम एक स्टेट के लिए हम क्या करते हैं, एक कलर को फिक्स कर देते हैं और बाकी हमारे पास 5 नेबर्स रह जाते हैं, और 5 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे और उन कॉम्बिनेशंस को हम इस तरह से एक्सप्लोर करेंगे गोल किस तरह से, जैसे हम पहले अपने प्रॉब्लम को ट्री की फॉर्म के अंदर हम प्रेजेंट करते थे. So by taking the advantage of constraint, so with the constraint propagation we never have to consider the blue as a value. So we have only 2 raised to power 5 because we fix one color, कि हम एक कलर हमने एक ऐसी स्टेट को दे दिया जो कि इन सारे रीजन्स के साथ क्या है, अटैच है. So that's why हमारे पास क्या है कि there are only 2 colors which we can assign the 5 neighboring states. So there are total 32 states without constraint specification problem. So we have to search 243 states, और यहाँ पे by applying the constraint propagation constraint CSP concept, so there are total 32 states. So यहाँ पे हमारे पास जो रिडक्शन है इतना, इसको कम 87% जो है वो कम काम करना पड़ता है CSP को, क्योंकि हम एक कंस्ट्रेंट लगा लेते हैं, उस कंस्ट्रेंट को जो सेटिस्फाई नहीं करता उसको पहले से हम एलिमिनेट कर देते हैं उन स्ट्रक्चर्स को. सो इन टुडेज लेक्चर आई विल डिस्कस द 8 coin problem.
So we also talked about this problem in our previous lecture. So यहाँ पे जस्ट मैं उसको दोबारा फिर इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि किस तरह से ये प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व होती है, किस तरह से हम कर सकते हैं इन द सेम वे। तो यहाँ पे उसके किस तरह से रूल्स बनाए जा सकते हैं, किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके बुक के अंदर एक एल्गोरिथम भी दिया है, हम उसको भी साथ में डिस्कस करेंगे। So the problem is we have to place 8 coins on this box, जो कि हमारे पास क्या है, चेस बॉक्स है। एंड द रूल इज नो वन कैन अटैक ऑन एनी अदर क्वींस, कि कोई भी दो क्वींस आपस में एक दूसरे को अटैक ना कर सकें। सो जस्ट लुक एट दिस स्टेट। सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि क्वींस की मूवमेंट किस तरह से होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि चेस से वाकिफ़ नहीं है, मैं उनको बता देता हूँ कि किस तरह से ये क्वींस की मूवमेंट किस तरह से, मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन उसको दोबारा फिर रिवाइज कर लेते हैं। सो दिस क्वीन कैन मूव फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट इन द सेम वे, दिस स्टेट एट दिस स्टेट, मीन कि ये किसी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा सकती है। इन द सेम वे इट कैन मूव अपवर्ड डायरेक्शन। सो जस्ट लुक एट दिस क्वीन, दिस क्वीन कैन मूव एट दिस लोकेशन, यहाँ पे किसी भी लोकेशन के ऊपर जाके एक मूव कर चल सकती है, अपने लोकेशन को चेंज कर सकती है। इन द सेम वे यही क्वीन नीचे की तरफ आ सकती है। अब यही क्वीन क्या है, साइडों की तरफ भी जा सकती है कि इट कैन मूव फ्रॉम दिस लोकेशन टू एट दिस लोकेशन, इन द सेम वे एट दिस लोकेशन, सो एट दिस लोकेशन। यही क्वीन क्या है, इस तरह से जो है वो इस लोकेशन की तरफ जा सकती है। तो यही क्वीन अब साइडों की तरफ भी इस तरह से जा सकती है। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से इस डायगोनल की तरफ, दिस क्वीन कैन मूव एट दिस लोकेशन, एट दिस लोकेशन, एट दिस लोकेशन, एट दिस लोकेशन। इन द सेम वे इट कैन मूव फ्रॉम दिस लोकेशन टू एट दिस लोकेशन, एट दिस लोकेशन, एट दिस लोकेशन। इन द सेम वे ये नीचे की तरफ भी जा सकती है, ये ऊपर की तरफ, ये इस तरह से डायगोनल भी कवर कर सकती है, मीन कि ये इस तरह से और इस तरह से और ये इस तरह से भी कवर कर सकती है। सो जस्ट लुक एट दिस क्वीन कैन अटैक on this queen, in the same way this queen can also attack on this queen। so ये दोनों queens क्या है, अटैक कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। so हमारे पास ये जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कोई भी क्वीन एक दूसरे के ऊपर अटैक ना कर सकें। जस्ट हमने क्या किया, उसकी मूवमेंट को देखा और देखा कि ये क्वीन जो है वो जैसे ही वो इस तरफ से जाना शुरू करेगी और ये देखें यहाँ पे इसके ऊपर अटैक कर सकती है। इन द सेम वे दिस कैन अटैक, दिस क्वीन कैन अटैक ऑन दिस। सो ये हमारे पास जो है वो रूल, हमारे पास जो फाइनल स्टेट है वो अचीव नहीं होती। सो 8 queen problem using CSP। so just look at this algorithm that initially the initial state might be a random configuration of 8 queens in 8 columns। so this is our initial state, we will place 8 queens in 8 columns randomly। हर एक कॉलम के अंदर में भी एक क्वीन हो, इस तरह से हम रख सकते हैं। so each step moves a single queen to a new position in its column to minimize or eliminate conflict। mean conflict क्या है कि वो अटैक ना कर सकें दूसरे के ऊपर। so at each step move a single queen to a new position in its column। कि उसी कॉलम के अंदर रहते हुए हमने इस तरह से उसको मूव करना है कि उसकी conflict कम से कम हो। typically the initial state initial guess violate several constraints। mean constraint क्या है हमारे पास कि कोई भी कोई एक दूसरे के ऊपर अटैक ना कर सकें। the point of local search is to eliminate the violated constraint। हमारे पास जो है वो हमने जितनी भी वायलेशन कर रही हैं, जो वायलेशन की तरफ जा रही होंगी, हमने उसको एलिमिनेट करना है। सो इनिशियली हम क्या करते हैं, जिस तरह से हम CSP प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, उसके अंदर क्या है, वेरिएबल्स होते हैं, डोमेन्स होती हैं, देन कॉन्स्टेंट्स होती हैं। सो जस्ट लुक एट दिस कि ये हमारे पास वेरिएबल, वेयर द वेरिएबल्स आर क्वींस फ्रॉम Q1 to Q8 एंड इन द सेम वे द डोमेन 1 to 8 कि हमारे पास क्या है कि ये क्वीन, ये पहली क्वीन है तो पहले कॉलम के अंदर रहते हुए ये इस लोकेशन पे आ सकती है, इसके ऊपर इस तरह से ये किसी भी 8 लोकेशन के ऊपर आ सकती है। सो देयर आर 8 रोज इन ईच कॉलम। सो ये पहली लोकेशन के ऊपर है, ये हमारे पास 3rd लोकेशन के ऊपर है, ये 5th लोकेशन के ऊपर है, ये हमारे पास 7th लोकेशन के ऊपर है, ये 8th लोकेशन के ऊपर है। सो इस तरह से मेरे पास क्या है, मैं इनमें से कोई एक वैल्यू हर क्वीन के लिए ले सकता हूँ कि क्वीन अपने कॉलम के अंदर Q1 हम कहते हैं कि पहले कॉलम के अंदर है, Q8 विल बी अवेलेबल एट लास्ट कॉलम। so Q1 will place at I will place this queen at first, जो कि अगर मैं इसको Q1 को Q इस तरह से रख दूँ, फर्स्ट लोकेशन के ऊपर रख दूँ, फर्स्ट के अंदर इस तरह से हम कोई भी क्वीन, यानी कि ये हमारे पास Q8 है, ये भी इनमें से कोई एक वैल्यू क्या है अपने अंदर ले सकता है।
So just look at this slide. I just change the initial state to solve this problem. कि किस तरह से हम इस एल्गोरिदम को हमने जो बात की है उसको भी देख लेते हैं कि जो अभी मैंने 4-5 स्टेप ये जो एल्गोरिदम के बताए हैं, that 8 coins problem using CSP, which is this solution is given in by Russell book. So ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये इनिशियल स्टेट है कि मेरे पास 8 कोइंस की जस्ट मैंने रैंडम इनिशियल जो है वो किया उसको. देन आई विल चेंज द लोकेशन ऑफ each coin that will eliminate the constant जो कॉन्फ्लिक्ट. सो जो जस्ट लुक एट दिस कोइन कि ये मेरे पास क्या है कि ये इसके ऊपर अटैक कर सकती है. इन द सेम वे जस्ट मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और जस्ट इसको इसी कॉलम के अंदर जाके चेंज करता हूँ. सो जस्ट लुक एट दिस कोइन. इफ आई प्लेस एट दिस लोकेशन दिस कोइन कैन अटैक एट दिस कोइन. सो यहाँ पे दो मेरे पास जो है वो एक ही जगह पे एक ही कोइन इसके ऊपर अटैक कर सकती है. तो यहाँ पे जस्ट मैंने एक लिख दिया. इन द सेम वे इफ आई प्लेस दिस कोइन एट दिस लोकेशन, so by placing this coin at this location, this coin can attack at this coin. In the same way at this location this coin can attack on this location and this coin. So in the same way if I place this coin at this location, so यहाँ पे भी क्या करेगी ये, it can attack on this location this coin. In the same way this coin can attack at on this coin. So in the same way ये हमारे पास क्या है कि ये इसके साथ भी अटैक कर सकती है, इसके साथ अटैक. तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि 3 कोइंस के साथ इसकी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है. सो आई विल नॉट प्लेस दिस कोइन टू एट दिस लोकेशन. सो एट दिस लोकेशन यहाँ पे मेरे पास क्या है कि जस्ट एक ही कोइन इसके ऊपर अटैक कर सकती है. जो पहले भी मेरे पास क्या है एक ही था, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आता हूँ तो 1 आता है. इन द सेम वे एट दिस लोकेशन ओनली 1 कोइन कैन अटैक ऑन दिस कोइन इफ आई प्लेस दिस कोइन एट दिस लोकेशन. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं रैंडमली अब मुझे मिनिमम जो है वो यही मिल रहा है या ये मिल रहा है, इनमें से कुछ एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ. यहाँ पे मैं इसको इस जगह पे रख देता हूँ और फिर क्या करूँगा, अगेन यहाँ पे आ गया. तो यहाँ पे प्लेस करने के बाद जो है वो अटैक इसके ऊपर कर रहा था. देन आई सेलेक्ट दिस कोइन. देन आई विल चेक दैट दिस कोइन बाय मूविंग दिस कोइन के इसको मैं इस जगह पे रखूँ या इस जगह पे रखूँ, किस लोकेशन पे रखूँ कि मेरा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मिनिमम हो सके. सो देन इफ आई प्लेस दिस कोइन एट दिस लोकेशन, सो एट दिस लोकेशन दिस कोइन कैन अटैक ऑन दिस एट दिस कोइन. सो इन द सेम वे इफ आई प्लेस दिस कोइन एट दिस लोकेशन दिस कोइन कैन अटैक ऑन this coin, and in the same way this जो है ये कोइन जो है वो ये मेरे पास इस कोइन के ऊपर भी अटैक कर सकती है. सो यहाँ पे मेरे पास 3 है, 3. सो 2 3 यहाँ पे मेरे पास 2 है. 2 कौन सी हैं, एक तो ये वाली है. इन द सेम वे दूसरी कौन सी है मेरे पास, ज़रा गेस करें कि किसके ऊपर अटैक कर सकती है ये वाली कोइन. अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूँ ये यहाँ पे ये इस कोइन के ऊपर भी अटैक कर सकती है. So just look at this point that if I place this coin at this location, so by placing this coin at this location, so मेरे पास कोई भी conflict नहीं आ रहा. So यहाँ पे 0 अटैक हो रहा है. Then I will move this coin from this location to at this location. So the final state is here. So यहाँ पे no coin can attack any other coin. So यहाँ पे मेरे पास क्या है कि मैंने 8 coins यहाँ पे रख दी हैं और कोई भी कोइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर रही. So just look at this algorithm which is given in your book, the artificial intelligence or modern approach by Russell. So the function is minimum conflict. So there are 2 parameters, CSP mean problem, constant specific problem, specification problem, the maximum steps. So यहाँ पे steps भी हमारे पास आ जाते हैं कि इतने steps के अंदर जो है वो अच्छा solution जो है वो return कर दे. So return the solution or a failure, input CSP and a constant specific CSP क्या है, a constant specification problem, maximum step, the number of step allowed before giving up, I mean कि कितने नंबर तक हमने उसको लेके चलना है. तो here is our current state and I will generate a loop that I is equal to 1 to maximum steps, जितने हम step ले सकते हैं. So यहाँ पे हम क्या करेंगे
यहाँ पे उसने एक रैंडमली इनिशलाइज किया, देन उसने क्या किया, उसको मिनिमाइज़ किया अपने उनके कॉन्फ्लिक्ट को कि किस तरह से मिनिमाइज उसके कॉन्फ्लिक्ट हो सके, जिस तरह से हमने इसी एग्जांपल के अंदर इसी 8 क्वीन प्रॉब्लम को भी हमने इसी तरह से किया कि इनिशियली ये मेरे पास स्टेट्स आ गई रैंडमली, देन आई जस्ट मिनिमाइज दी कॉन्फ्लिक्ट्स। सो इस तरह से मैंने कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज़ करते हुए मैंने हर कॉलम के अंदर क्या किया, कोशिश की है कि ये हर कॉलम की जो क्वीन है वो मैक्सिमम मिनिमम जो कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे हम उसको शिफ्ट कर सकें, एज आई डिस्कस्ड दिस एल्गोरिथम इन दिस स्लाइड। सो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि देन जो भी अगर हमारे पास जो है वो मिनिमाइज हो जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको रिटर्न कर देते हैं। इफ़ द करंट इज सोल्यूशन फॉर CSP देन रिटर्न द करंट सोल्यूशन, एल्स क्या करें वो इस तरह से चलता जाए। So just look at another problem, the Sudco problem, Sudco game. So this is also an interesting game. There is a board consists of 81 square, some of which are initially filled with digits from 1 to 9. So यहाँ पे मेरे पास एक स्क्वायर होगा जिसके एक बॉक्स है, एक बोर्ड है, जिस तरह से चेस बोर्ड था मेरे पास। So there are 81 squares. So यहाँ पे क्या है कि some of them are initially filled with digits from 1 to 9. The puzzle is to fill in all the remaining squares such that no digits appears twice in any row, in any column or 3 by 3 box. Mean मैंने अगर एक नंबर प्लेस कर दिया है, that number will not appear in any row, in the same row, in the same column, in the same way. मेरे पास जो है वो 3 by 3 का जो बॉक्स बनेगा उसके अंदर भी वो नंबर अपीयर नहीं होना चाहिए। जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल, दिस प्रॉब्लम, दिस को प्रॉब्लम। सो देर आर टोटल 81 boxes. So just look at this, there are 9 columns from 1 to 9, 9 columns and 9 rows, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So there are 9 rows. So यहाँ पे 81 मेरे पास जो है वो boxes आ जाते हैं। So the rule is initially some boxes are filled initially. So यहाँ पे मेरे पास initially कुछ fill किए हुए हैं। Then the rule is if I place the 1 is here, यहाँ पे मेरे पास I place the 1 at this box, in this box. So 1 will not appear in this row. In the same way 1 will not appear in this row, in this column. In the same way the third rule is the 1 will not appear in this 3 by 3 box. So यहाँ पे जो 3 by 3 का बॉक्स है इसके अंदर भी ये अपीयर नहीं होना चाहिए, ये जो गेम का रूल है। So just look at this game again. Sudco board consists of 81 square, some of which are initially filled with digits from 1 to 9. So there the variable are from 1 to 9. So in the same way जो मेरे पास क्या है वो क्या है कि the puzzle is to be filled in all remaining squares such that no digits appear twice in any row, कि कोई भी digit 2 दफ़ा appear नहीं होना चाहिए in any row, in any column or 3 by 3 box. A row, column or box is called unit. So ये जो मेरे पास जो है वो row हो जाएगी या column मेरे पास आ जाएगा या box हो जाएगा, इसको हम as a unit जो है वो consider करेंगे। So I just this is our initial state and this is our solution. So मैंने just उसको solution यहाँ पे दे दिया है, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी हमारे पास कितनी नंबर ऑफ़ स्टेट्स खुद अंदाज़ा करें कि मेरे पास 81 बॉक्सेस हैं, मेरे पास 1 से लेकर 9 तक उसके जो हैं वो नंबर्स हैं, रूल क्या है और कितनी पॉसिबल स्टेट्स मेरे पास जनरेट हो सकती हैं, फिर उनको एक ट्री की फॉर्म में बनाना। ये मैं अगर मैनुअल तरीके से करूँ तो मेरे पास काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर जो मैं रूल इस तरह से बना दिए कि ये मेरे पास कोई भी एक नंबर जो है वो उसके अंदर रो कॉलम या 3 by 3 बॉक्सेस के अंदर नहीं आएगा, तो कितनी सारी स्टेट्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं, कम हो जाती हैं जब मैं इसको सोल्यूशन जो है वो फाइंड करने जाता हूँ। सो हियर इज़ आवर सोल्यूशन दैट इन दिस बॉक्स जस्ट लुक एट 1
2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो कोई भी नंबर जो है वो दो दफ़ा नहीं आया है, तो किसी भी बॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो एक नंबर जो है वो 2 दफ़ा नहीं आता। इन द सेम वे द 5, so 5 in this here is 5, so in this row there is not any other 5, so in the same way यहाँ पे इसके अंदर भी यहाँ पे 5 दोबारा नहीं आया। तो दिस इज आवर solution. So in our constant specification problem, so we always write the constant. So यहाँ पे मेरे पास constant यहाँ पे क्या है, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ all different constants, one for each row and column and box. So all difference मतलब कि एक नंबर अगर एक के अंदर आ गया दूसरे अंदर के अंदर नहीं होना चाहिए, ये सारी की सारी डिफरेंट होनी चाहिए। मीन द वैल्यू ऑफ A1, A2, A3, A5, A6 in the same way up to A9, all values must be different. So A1, what is the value of what is जो कौन सा बॉक्स है A1, this is A1, A2, A3, A4, A5 up to A9. So ये जो हमारे पास है कि एक रो के अंदर डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए। इन द सेम वे B1, B2, B3, B4 up to B9. So for this row ये भी मेरे पास वैल्यूज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इन द सेम वे फॉर दिस कॉलम, सो यहाँ पे देखें कॉलम के लिए A1, B1, C1, D1 इन द सेम वे I1। सो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि ये सारे का सारा जो है वो कॉलम भी जो है ना वो डिफरेंट होना चाहिए। फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम इन द सेम वे थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम अप टू 9 कॉलम। सो यहाँ पे 9th जो कॉलम होगा वो A9, ऑल डिफरेंट A9, B9, C9, D9। सो यहाँ पे सारे के सारे जो है वो आपस में डिफरेंट होने चाहिए। सो फॉर बॉक्सेस, सो देर आर 9 बॉक्सेस A2, A1, A2, A3। So just look at this box A1, A2 and A3, B1, B2, B3, C2, C1, C2, C3। सो यहाँ पे मेरे पास देखें ये मेरे पास बॉक्स जो है वो ये अपीयर हो जाता है। इन द सेम वे A4, A5, A6, D4। सो दिस आर डिफरेंस, ये भी मेरे पास जो है वो आर डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए। सो इन टुडेज लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ constant specification problem again and just solve जो उसका solution ही हमने discuss किया था। there are 2 different problems जिसको हमने solve किया, that are Sudco problems and the 8 coins problem. We solved these problems and we discussed the solution of these problem which is solved by CSP। so आप भी इसको इस तरह से initial state से आप क्या कर सकते हैं, solve कर सकते हैं। I hope you enjoy this video lecture. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.